Unacademy. Let's crack it. Hi guys, good morning. Good morning everyone. Good morning, good morning. Very good to all of you. Good morning guys. ये सुशांत क्लास हो रही है मॉर्निंग में करना 2 दिन से 5 दिन है 3 दिन हो पाया सो मेकअप करना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्टिंग दिस टू हेड क्वेश्चंस है ना तो बेसिकली इट विल बी काइंड ऑफ मिक्स्ड प्रैक्टिस तो मिक्स्ड प्रैक्टिस में विल ट्राई टू लेट्स से कि जब हम लोग फर्स्ट 30-40 कवर करेंगे तो ट्राई टू टच ऑल द टॉपिक्स राइट ठीक है there will be new questions थोड़ा bit of moderate to advanced level basically cat level है ठीक है so basically cat level का मतलब should be moderate to advanced level right तो easy questions तो नहीं ही होंगे इसमें mostly advanced level ही होंगे ठीक है तो we'll just try to solve as many questions as possible right नहीं ये mixed practice है टॉपिक वाइज नहीं होगा मिक्स वाइज करेंगे ओके चलो let me upload the first question guys वो लिखा था ना अभिषेक सबने अप्रोच दिया था वर्तिका ने आयुष ने देखो देख लो मैं भी समझा दूंगा अगर नहीं क्लियर है तो चलो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग पोलिंग करेंगे टाइम गिवन विल बी 2 मिनट्स पर क्वेश्चन ठीक है तो टाइम इज 2 मिनट्स पर क्वेश्चन ठीक है एंड देन विल डू द पोलिंग सो नोट राइट द आंसर विल सी कि कौन कौन आज का पोलिंग में टॉप 10 है एट द एंड ऑफ द सेशन राइट चलो स्टार्ट टाइम स्टार्ट 2 मिनट्स नाउ good morning guys, good morning everyone. Good morning everyone, good morning. Good morning. Good morning guys, चलो good morning, good morning. गुड मॉर्निंग इट इज पोलिंग गाइस हम लोग पोलिंग करेंगे सो आंसर सही होगा या गलत डोंट टाइप ओके विदिन में कर लेना सर सारा एक बजे में देख लेंगे ठीक है विल डू द पोलिंग गाइस सो आंसर सही है या गलत डोंट टाइप द आंसर ओके चलो लेट्स डू पोलिंग नाउ 2 मिनट हो गए
ओके सो यस सी इज द आंसर. ठीक है फाइन. तो बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में so basically क्या है इस क्वेश्चन में. So this question is basically about like we have ये basically log का क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. You can see this is like log AB plus log BA है ना. You can change this argument right. तो ये basically ये है आपका फॉर्म क्या है. If P minus 4 is supposed to be A and if P minus 3 is supposed to be B, then good morning. So log A of B and plus this form what this is log B of base A. ठीक है. सो ये B of base से रेसिप्रोकल राइट. आपको याद होगा ना. इफ log AB को अगर हम T अज्यूम कर सकते हैं दिस इज log AB सॉरी उल्टा करिए. ठीक है log B. ठीक है तो T plus 1 by T. तो this T plus 1 by T का फॉर्म है. एंड व्हाट सेकंड थिंग आई कैन सी फ्रॉम हियर इज दैट this form actually right कि this second equation actually says that कि ये वैल्यू पॉजिटिव है. this value is positive, this value is less than equal to 2. हमें दो चीज पता है पहले से भी है ना. we know those two things that t any reciprocal form right. so a plus 1 by a is always greater than equal to 2 and a plus 1 by a is always less than equal to minus 2. This is for all negative values and this is for all the positive values. This already we know this right. जो मुझे पता लिख लेना. ठीक है. sum of a number and its reciprocal is always more than equal to 2. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि दिस इज पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो t plus 1 by t should be greater than equal to 2 right. but in question it is mentioned that it is less than equal to 2. so greater than equal to 2 and less than equal to 2 will satisfy in only one condition when t plus 1 by t is equal to 2. ठीक है. so greater than and less than both will satisfy only one condition when it is equal to 2 right. so now basically जब ये equal to 2 है that means ये कब possible है when it is equal. it is equal at t is equal to 1 right. ये equal कब होगा. ये equal to होगा at t equal to 1. so when t is equal to 1 we can directly put the values here. ठीक है. that mod of p minus 3 is equal to 1 and mod of p minus 4 is equal to 1. so mod of p minus 3 is equal to mod of p minus 4 है ना. क्योंकि दोनों 1 1 हो गया right. so mod of p minus 4 is also 1 and mod of p minus 3 is also 1 right. so when mod of p minus 3 and mod of p minus 4 so you just simply solve it ना. so solve कर देते हैं यहाँ पे simply. ये बन जाएगा आपका p minus 4 is equal to minus half right. therefore p and p minus 3 is equal to half. ठीक है. therefore p is equal to 7 by 2. so anyway this should be the answer right. so p equal to 7 by 2. That is C option. Clear to everyone? Good. Second question guys. क्या इसमें रिपीट क्या करना है. nothing to repeat here right. both are greater than equal to 2. so obviously ये greater than equal to 2 है और less than equal to minus greater than equal to 2 है और यहाँ पे less than equal to 2 दिया हुआ. that basically means that it is equal to 2. तो equal to कब होगा. it is equal to 2 only at t equal to 1. so when t is equal to 1 just equate it. तो mod of p minus 4 is भी 1 हो गया. ठीक है because दोनों t है. तो mod of p minus 4 भी 1 हो गया and mod of p minus 3 भी 1 हो गया. I can equate them then. that means mod of p minus 3 is equal to 1 and mod of p minus 4 is also equal to 1. ठीक है. so you just open the bracket right. ये value positive होगा ना. it can never be negative right. ठीक है. so p minus 3 is equal to क्या हो जाएगा. जैसे you just open the bracket right. no को equate कर दो. you'll get this p minus 4 equal to minus half and this is दोनों के सॉल्व करने पे आएगा p equal to 7 by 2 आएगा. ठीक है. चलो सेकंड क्वेश्चन.
डोंट टाइप द आंसर्स, पोलिंग करेंगे। वही यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं पा रहा उसमें, सो नॉट नीडेड टू अप्लाई डिजिटल सर्वर, ज्यादा कुछ था नहीं, जहाँ इजी होगा वहाँ अप्लाई कर लेंगे। Hi, everyone. Good morning. Okay. Polling last 20 seconds. Chalo, here the polling was live now. Good morning, Priya. Good morning. Okay. देखिए कौन चला टॉप 2x2 पे। अमय, प्रसन्ना, मयूर, भावना, संजना, मुकुंद, कार्तिक, अरण्या, ईशान एंड अंकित। ओके नाइस, ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग कार्तिक। चलो सो लुक एट दिस, वी हैव ऑल, मैंने हम पहले सब क्वेश्चन कर चुके ना, प्लस में सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, राइट। देखो तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, सो आई जस्ट ट्राई टू इक्वेट इट टू के, है ना। सबको मैं पहले के से इक्वेट कर लेता हूँ। So 4 raised to x is equal to 0.008 raised to y is equal to 10 raised to z is equal to some k I'll get here, right? So basically when 4 raised to x is equal to k, so when 4 raised to x is equal to k, what I'll get actually, इसको लिख लो, you can just write this as 2 raised to 2x, है ना। So we can write this as 2 raised to 2x, so then now that value will become 2 raised to 2x is equal to k, right? So now 2 is equal to k raised to 1 by 2x. This can be my equation 1, right? कि मुझे इसको इन सबको नंबर्स फ्री करना है, and then I can write into form of 2 here. ले सकते हैं log, but ये बेटर होता है गौरव, ठीक है। हर नंबर का log इजी नहीं होता, log का ऑपरेशन, ठीक है, बट हाँ log ले सकते हैं, कोई इशू नहीं log लेने में, फाइन, ठीक है। देन 0.008 है, तो इसको आई कैन राइट दिस एज 0.2 का क्यूब, हाँ। सो 0.008 रेज टू y, ओके। आई कैन राइट दिस एज 0.2 का क्यूब, राइट, है ना, रेज टू y बेसिकली, राइट, एंड इज इक्वल टू k, करेक्ट। सो हियर आई कैन राइट दैट माय k इज इक्वल टू हियर, कितना जाएगा, 5 है ना, तो 1 बाई, इसको लिखो नाउ, सी इट गाइस। तो 0.2 को यू कैन राइट दिस एज, व्हाट इज 0.2, इट इज 1 by 5, सो 1, व्हाट इज 1 by 5, 5 raised to -1, ठीक है।
तो ये जो आपका 0.2 है इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू -1, राइट, एंड इनटू 3y दैट बिकम्स 5 रेज टू -3y, है ना. तो आई कैन राइट दिस एज व्हाट 5 रेज टू -3y हाँ इज इक्वल टू k, राइट. देयरफॉर आई कैन राइट इक्वेट इट टू, ठीक है, मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं यहां पे 5 इज इक्वल टू k रेज टू -1/3y. ऑल आर गेटिंग दिस स्टेप्स, राइट, है ना. सबको इतना तो पता होना चाहिए. ऑल दिस बेसिस पॉइंट शुड बी क्लियर, राइट, है ना. ओके, सो नाउ वंस यू आर गेटिंग 5 रेज टू, तो ये सेकंड वाला आ गया, राइट. नाउ थर्ड वाला, थर्ड में क्या है बेसिकली 10 रेज टू z है. ये तो सिंपल है ना 10 रेज टू z वाला, राइट. तो व्हाट इज 10 रेज टू z? तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो. एंड रादर बेसिकली व्हाट होता क्या इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज़ दिस सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज कम इन कैट 3 टाइम्स आई थिंक, ठीक है, 3 या 4 टाइम मुझे याद है. एक ही टाइप का क्वेश्चन वैरायटी 3 बार ज्यादा कैट में आ चुका है. सो बेसिकली तो इस पे रिलेशन फाइंड करना होता है. सो कैन आई से कि जो वैल्यू है हमारे पास, राइट, दैट 10 1. सो बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू डू हियर, सो वंस आई सी द अप्रोच, राइट, तो मैं देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये देखना चाहा कि ये 10 जो है, 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यहां से एंड 5 यहां से, right. So that's why I was more interested to change these values as 10 is equal to 2 into 5 rather than, right, so that I can directly find a relation actually. ठीक है, जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या चल रहा होगा. So अगर मैं लिखूंगा 10 raised to z that is equal to 2 into 5 raised to z is equal to k, है ना. That's why I was more interested in writing in form of 10 है क्योंकि तो in breaking in terms of 2 and 5 actually. ठीक है, अब ना मुझे पता है कि 2 into 5 raised to z is equal to k, तो I can directly put the values here, right. हाँ, I can directly put the values here, right. ठीक है, तो बताओ इस केस में बेसिकली क्या होगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q here, है ना. q की वैल्यू क्या होगी, राइट. तो अगर यहाँ पे चेक करोगे कि q की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट रुक जाना. यार हाँ, सो यहाँ पे q की वैल्यू क्या होगी, राइट. सो कैन जस्ट राइट डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ 2 हियर. सो 2 इज इक्वल टू k raised to 1/2x that you can place put in place of 2 here, and 5 is equal to k raised to -1/3y that you put in place of 5 here, right. तो you'll get a relation between x, y and z actually. ठीक है, तो ये हमारा फंडा होगा to solve this kind of question, right. चलो ठीक है, just we can solve it now. So this is a funda, right. Again just quickly solve it guys. तो ये आपका बन जाएगा कितना k raised to 1/2x, okay, into k raised to -1/3y is equal to k raised to 1/z. Okay, and now you can just relate it with guys. इसको आप relate कर सकते हो in formula, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा 1/2x minus 1/3y is equal to 1/z. तो I think D will satisfy, है ना, D option, right. 1/2x is equal to 1/3y plus 1/z. ठीक है, is clear everyone? बेस 10 ले लो, राहुल, कोई दिक्कत नहीं है. एंड यू कैन ऑलवेज उसमें लॉग में कोई दिक्कत नहीं है, जो बेस 10 ले लो एंड यू कैन ऑलवेज चेंज बाय द फंडा. आप हमेशा उसको चेंज कर सकते हो लॉग के फंडा से, मतलब अब अपना जो रिक्वायर्ड बेस है आप बेस चेंज फॉर्मूला लगा सकते हो, बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है. बट लॉग में जाता है, लॉग डिफिकल्ट होगा इसको, आई डोंट नो, आई फील लाइक कि लॉग लगाना डिफिकल्ट होगा. मैंने कभी लगाया नहीं है लॉग एक्चुअली, बट आई फील लाइक लॉग लगाना डिफिकल्ट होगा. हाँ ऑब्वियसली वही आंसर आएगा, एक बस आपको अप्रोच जानना चाहिए, ठीक है. ओके, थर्ड क्वेश्चन गाइस, अगेन टाइम ऑफ 2 minutes.
We'll do the point after that. चलो. Good. Okay, fine. देखो. So now you got the funda, right? है ना? तो yes, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया इसी टाइप का, ठीक है? क्योंकि सेम अप्रोच होगा. हाँ, you should know how to. मैंने बोला कि कैट में they've asked 3-4 times this questions, right? तो मुझे आना चाहिए ये, ठीक है? So simple है, right? So पहले ही हम observe कर लेंगे. So we know by the virtue of last question, I know that this 576 I need to turn in the form of what? In a term of 2 and 3. ठीक है? So 576 को how do you write in terms of 2 and 3, guys? So this 576 is equal to what? 64 into 9. That is 2 raised to 6 into 3 square. Okay, that means मेरा aim होगा इन सबको इसी फॉर्म में लाना, है ना? That's my aim, right? तो इनको हम will try to bring this in this form actually, right? ठीक है. Again same funda. I'll just try to equate all to k, guys. Okay, so just try to equate all to k. That is 2 raised to 1 by p is equal to 3 raised to 1 by q is equal to 576 raised to 1 by r and equate it to k, right? What मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से? 2 is equal to k raised to p actually, है ना? So k raised to p, 3 is equal to k raised to q, and this 576 is equal to k raised to r. ठीक है? And I can just equate this. I can use this property, right? That 576 is equal to 2 power 6 into 3 का square. Sorry. Okay. And यहाँ पे आप इसको equate कर लो, ठीक है? तो you can write here k raised to r is equal to, that is k raised to q है ना? So k raised to q is square into k raised to p की value 6, ठीक है? That is k raised to r is equal to k raised to 2q plus 6p, ठीक है? Therefore r is equal to 6p plus 2q. Therefore r upon 3p plus q is equal to 2. So 2 should be the answer. Correct, right? Okay. Let's move to third question. कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना? Fourth question, right? Okay. चलो.
Again, time of 2 minutes, guys. Time 2 minutes. दीपक 2 मिनट का टाइम दिया, 2 मिनट का। तो या तो पिछले क्वेश्चन का अभी पोल नहीं कियो, या तो अगले क्वेश्चन जल्दी में, अगले क्वेश्चन के लिए। हाँ निखिल, 1-2 दिन रुक जाओ यार, मुझे पता है मैसेज किया है सबने, स्कोर कार्ड मैसेज किया है, 1-2 दिन टाइम देना पड़ेगा, रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, कर रहा हूँ सबका। क्योंकि आंसर नहीं टाइप करना है। कितना बोलो मैं, 3 बार जाओ, 4 बार? भाई ब्लॉक, अब सीधा ब्लॉक हो गए। एक ही बार बताओ कितना बोलूंगा मैं, जो आंसर टाइप करो सब ब्लॉक कर दूंगा सीधा। क्यों चाहते हो फर्स्ट क्लास में ब्लॉक होना? आई डोंट नो, 200 क्वेश्चंस के। ओके चलो पोलिंग गाइस। ट्वेंटी 23%। देखिए लीडरबोर्ड क्या चल रहा है। Abhishek has got 4/4, Aditi has got 4/4, very good. Amay 4/4, Shruti 4/4, so Ankit all about now 3/4। अच्छा, मयंक भी उठे हुए हो, क्या बात है मयंक? देखो आगे देखते, देखो ना वाइस। सो लुक एट दिस क्वेश्चन हियर। सो ए बी हमें पता है एक्चुअली, दिस फंडा एक्चुअली वी नो राइट, कि जो आपका एबीसी है, हाँ, तो मैंने इसको पहले ही पढ़ाया है आपको पहले भी, ठीक है, कि इस पे कि एबीसी इसको ब्रेक करने पे क्या होता है, कैन जस्ट सिंपली ब्रेक इट, राइट, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एज यस 1000 एबीसी, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो एबीसी इनटू 1001, ठीक है। मतलब हाउ डू यू गेट दिस, राइट? सो यू नो बाय प्रूफ को मिल जाता है ना कि इसको आप ब्रेक कर सकते हो, राइट, टेंस 100 में ना। तो इफ ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट, अदरवाइज इसको मैं सॉल्व करूं, कैसा आता है? एनीबॉडी हु डजंट नो दिस? आता है सबको? हाँ ठीक है, तो ये जस्ट प्लीज राइट, ठीक कर देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं, सब लोगों ने प्लस के नहीं, हम लोगों को नहीं पता है, लोग प्लस प्लस लोग रटा गए, प्लस वालों को तो ये ठीक है, हम लोग को रटा गया होगा, बट बहुत लोगों को नहीं पता। देखो हाउ डू सॉल्व इट, राइट? तो इसको जस्ट ब्रेक कर सकते हो ना, यू कैन जस्ट ब्रेक दिस एज एबीसी हाँ इज इक्वल टू, नाउ इट इज बेसिकली ये 5 है, तो नाउ 1 0 1 2 3 4 5, so a into 10 raised to 5 plus b into 10 raised to 4 plus c into 10 cube
plus a into 10 square plus b into 10 raised to 1 plus c. ठीक है, राइट लाइक दिस टू कंबाइन टर्म्स ऑफ एक्चुअली a. अब a का टर्म्स कंबाइन कर सकते हो, you takes you see here, so in no term you can take 100a as common, right? तो 10 square a का वैल्यू कॉमन है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 10 क्यूब प्लस 1, है ना? सिमिलरली फॉर b एक्चुअली if b वाले दो टर्म को लोगे तो आई कैन टेक b into 10 as कॉमन, तो यहाँ बचेगा 10 क्यूब प्लस 1, राइट? एंड देन यू सी वाले टर्म ये कितना बचेगा आपका 10 cube plus 1 into c. So from all the three terms you can take 10 cube plus 1 as common, है ना? तो ये बन जाएगा 1001 and then you are left with what? ये आपका हो गया 100a plus 10b plus c, right? This is basically what? So in normal terms it is written as what? abc, है ना? So ये आपका हो गया 1001 into abc, ठीक है? ओके गौरव, तो ये आपका 1001 इंटू एबीसी है, राइट? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, सो बेसिकली व्हाट इज 1001 गाइस, ये भी मुझे पता है ना? बताओ बताओ क्या होता है 1001? इट इज 7 into 11 into 13, right? But my question is here, it should be a multiple of 301, right? So for being a multiple of 301, what is 301 guys? So if I see here, तो 301 is equal to 7 into 43. तो मुझे मेरे पास तो कोई 43 का टर्म नहीं है, राइट? बट ये 7 का टर्म है मेरे पास, है ना? I need 7 here, right? That means for this number to be a multiple of 43, this ABC should be a multiple of 43, right? So ABC should be a multiple of 43, है ना? क्योंकि 301 का मल्टीपल होना है, we already have a 7 here, right? So I need an extra 43. That means ABC is a 3 number and ABC should be a multiple of 43, right? Once ABC is a multiple of 43, उस केस में क्या होता है? Basically ABC is equal to 43k, right? तो ABC is a 3-digit number, है ना? तो देखेंगे तो it starts from where? It starts from 43 into 1, 43 into 2, कहां तक जाएगा ये? 43 into 23 तक जाएगा, है ना? करके देखो, राइट? इट विल गो टिल, बिकॉज आई एट 43 to 23 इट विल एंड एट जस्ट लेस देन 1000, है ना? जस्ट लेस देन 1000 आएगा, राइट? तो बेसिकली बट यहां पे मुझे ये ध्यान देना है कि अगर मैं 43 into 1 लूं, इट बिकम्स 043, इट बिकम्स 086, राइट? नाउ टेल मी गाइस, a कांट बी 0, है ना? a is a, क्योंकि अगर a 0 होगा it will become a 5-digit number. If a will be equal to 0, it will become a 5-digit number, right? It's not a 6-digit number. That means I can't take this first two cases, है ना? मुझे start कहां से करना होगा? I need to start from 43 into 3. Okay. Now here start from here on, it's a multiple of 43 as well as a 3-digit number. So when ABC is a perfect 3-digit number, in that case ABC is a 6-digit number, right? So I need to take all the values from 3 to 23. 3 से लेकर 23 की all values I can take here, right? So I can take here 21 values. ठीक है? So ABC can pick 21 values here, right? That's why what is my answer? My answer is 21. ठीक है? This cleared everyone, right? Okay. एंड का पार्ट वही बोला मैंने कि ABC should be a multiple of 43. So for ABC should be a multiple of 43, it should take all the 3-digit values. But A into 1 or into 2 पे it will not take 3-digit values, right? क्योंकि 04 और 0886 है, right? Because if A is 0, this number becomes a 5-digit number. Because as per our question, it should be a 6-digit number, right? This is not possible. Hence 21 values only can take. 3 से start लेके 23 तक end, right? Because मुझे 301 का मल्टीपल चाहिए था, तो 301 is 7 into 43. 7 into 43. तो इस नंबर को 301 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें ऑलरेडी 7 है मेरे पास, तो I need one extra 43, right?
शुड बी क्लियर एवरीवन, राइट? है ना? चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ प्राइम है, प्राइम है, यस। सॉरी यहाँ लिखा नहीं, 1 or 2 प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स। वर्तिका 2 मिनट हो जाए, 2 मिनट। तो कैलकुलेटर नहीं यूज करना है ना। सिर्फ कैट पे होगा ना, जैट पे नहीं होगा। हाँ मैं डेली ऑफिस जा रहा हूँ। चलो पोलिंग गाइस। मैसेज करना मैम कभी। देखो ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है, राइट? बट आप लोग हिडन ट्रायल किए ना? वैल्यूज चेक किया होगा ना कि कौन सा वैल्यू आ रहा है। हाँ कैलकुलेटर यूज कर लियो। कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर यूज देखो। तो 64 look here, right? It is 6499. ओके तो देखो आई टेल यू बोथ द पार्ट्स, राइट? देखो बताता हूं मैं, नोट समझते कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंडा आल्सो, ठीक है? फंडा होना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देखो मेथड 1 तो हमेशा चलेगा, ठीक है? क्योंकि नंबर्स इजी है तो दिख जाता है, राइट? बट एक हमें इसका मेथड 2 भी, व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस व्हेन आई कुड डायरेक्टली व्हेन आई डोंट सी द नंबर डायरेक्टली, है ना? उस केस में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, वो ये आना चाहिए अभी हमें, राइट? तो फर्स्ट विल सी एक्चुअली कि इनका पहले क्या है, पहले क्या दिमाग में अप्रोच आता है, राइट? तो पहले दिखता है कि नंबर्स इजी है, 60,499 है, ठीक है? एक नंबर 99 में एंड कर रहा है, राइट? तो क्या नहीं कह रहे, सो बेसिकली ये इजी इसलिए ये आपका हो जाता है क्योंकि आप स्टार्ट करते हो सोचना 99 के फॉर्म में, राइट? तो अगर एक वन नंबर इज एंडिंग इन 99, हाँ तो हमें यहां से स्ट्राइक करता है, यस, तो ये हमें स्ट्राइक करता है कि 99 से कोई नंबर एंड कर रहा है, सो इट कुड बी ओनली 99 और इट कुड बी 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद 99। हाँ और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये कभी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉर एनी वैल्यू, राइट? है ना? और दोनों प्राइम नंबर भी है, यस करेक्ट, दोनों प्राइम नंबर भी है, ठीक है? सो फॉर ऑल दी वी नीड टू चेक फॉर ऑल द प्राइम नंबर्स, राइट? है ना? हाँ तो इस केस में तो हम ये सोचेंगे कि ठीक है चलो 99 का मल्टीपल तो नहीं है। इफ यू चेक इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 99, ठीक है? फर्दर इफ यू चेक
it is 199 a prime number guys? बताओ, is 199 a prime number? 199, ठीक है, तो हम चेक करेंगे 199 पे, तो इसका भी मल्टीपल नहीं है, करेक्ट? देन is 299 a prime number? 299, बताओ, is 299 a prime number? किसका मल्टीपल है ये? 13 का मल्टीपल है, राइट? 13 का मल्टीपल है ना, 13 इंटू 23 होता है ये, ठीक है? तो यहां पे चेक करना ही नहीं था मेरा, ठीक है? उसके बाद मैं तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि ये 599 पे हो जाता है, राइट? पहले ये मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ मेथड 1 हिट एंड ट्रायल, आई विल टेल यू मेथड 2 आल्सो, राइट? इज दैट हिट एंड ट्रायल एक्चुअली, ठीक है? सो इट कम्स एट 599, हाँ ऐसे चेक करते हुए, एंड दिस 599 पे चेक करोगे दैट सैटिस्फाइज एक्चुअली 599 into 101, ठीक है? और सेटिस्फाई कर जाता है, इट सेटिस्फाइज, ठीक है? तो एक तो ये एक सब लोगों ने जिन्होंने जल्दी सॉल्व किया उन्होंने ऐसे ही सॉल्व किया, राइट? कि इट सेटिस्फाइज कि ये इज आल्सो अ प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो सम इज इक्वल टू व्हाट? सो p1 plus p2 इज इक्वल टू 700, ठीक है? बट ऑल सच क्वेश्चंस मे नॉट बी दैट, मैंने भी एक्चुअली ऐसे ही सॉल्व किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है? बट ऑल सच क्वेश्चंस मे नॉट बी दैट डायरेक्टली विजिबल विद द वैल्यूज, राइट? ठीक है, तो हमारा ऐसे क्वेश्चंस के लिए इन जनरल थॉट प्रोसेस क्या होगा, दैट आल्सो वी शुड एक्चुअली नो, ठीक है? तो चलो ये तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल ऑल फाइन, राइट? नाउ सिर्फ गेट मेथड 2 क्या देखते हैं, ठीक है? सो हाउ टू डेवलप इन जनरल थॉट प्रोसेस फॉर सच क्वेश्चंस, राइट? हाँ, 599 प्राइम हो रहा होगा तभी सेटिस्फाई कर रहा होगा, चेक करोगे तो कितना है? p1 p2 है ना, तो यहाँ पे 31 इंटू 19, 31 इंटू 19 होता है क्या? आई डोंट थिंक 570, नहीं यार, 31 इंटू 19 कैसे होगा? 31 इंटू 19 तो होता है आपका 5, ये हो जाएगा 589 हो जाएगा, ठीक है? इट इज नॉट 599, राइट? ये सब मिस्टेक करना है जाके एग्जाम में, ठीक है? देखो यहाँ पे, देखो जनरल थॉट प्रोसेस यहाँ पे, राइट? तो इन दिस केस क्या होगा? सो नाउ व्हाट आई एक्चुअली थिंक हियर इज, मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँगा, समझो यहाँ पे, ठीक है? लिसन गाइस, व्हाट इज थॉट प्रोसेस? माय थॉट प्रोसेस शुड बी हियर कि if it is ending in 99, समझना गाइस, ठीक है? मेथड 2, ओके, if it is ending in 99, so its general form will be like in the form of 100a minus 1, ठीक है? 99 में एंड करा ना, तो ये क्या होगा? कोई 100 का मल्टीपल -1, राइट? अरे ये दोनों करना, दैट्स व्हाट वी डू हिट एंड ट्रायल हियर, राइट? हाँ, 99 199, हाँ, इट शुड बी एनी 100 का मल्टीपल -1 इफ इट इज एंडिंग एट 99, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय, तो व्हेनेवर 99 का मुझे कोई फॉर्म चाहिए, राइट? 99 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू विल एंड इन 99, राइट? तो दोस वैल्यू शुड बी एक्चुअली एंडिंग विद व्हाट? समटाइम इट कुड बी 11, है ना? 11 with unit digit being 1, right? Yes, fine, correct. So 99 है, so I need unit digit being 1 here, right? So I need unit digit being 1, like numbers like 11 or 101 will kind of do, right? Basically ऐसे numbers work करेगा, ठीक है? तो if unit digit is 1, right? तो basically मेरा number क्या होगा? So मेरे number का form यहाँ पे होगा 10b plus 1, ठीक है? And this इसका multiplication should be equal to 60,499. Getting it, right? Okay. तो ये मैं कब बोल रहा हूं कि when the numbers are not directly visible, right? तो उस केस में हमारा thought process क्या होना चाहिए? Okay. So this is how we should do it, right? ठीक है? कि 100 ending with 99 and unit digit being 1, right? तो नंबर का फॉर्म हो गया 100a minus 1 into 10b plus 1. 100 प्लस 1 आगे आएगा, बट ये तो 11 का भी कोई हो सकता है ना मल्टीपल यहाँ पे, क्योंकि 99 है, राइट? इट कुड बी 499, इट कुड बी 599, इट कुड बी 699, कभी भी आ सकता है इस केस में, राइट? ठीक है, इसको जनरलाइज कर लेंगे, और एनी 100b plus 1, तो 10b plus 1 का तो है ही ना। 100 ending with 99, that means 100 का multiple -1
will end in 99. Unit digit being 1, that means unit digit 1 कैसे होता है? Any 10 का multiple plus 1, right? Unit digit being 1 actually. ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि अब इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो देखिए आपका मिलेगा आपको यहाँ पे 1000 AB, ठीक है, माइनस 10B प्लस 100A इज इक्वल टू 60,500, करेक्ट। ये 1 को उधर ले लेंगे -1 को, ठीक है। एंड नाउ आई कैन सी हियर दैट, मुझे यहां पे दिखना चाहिए, अब देखो अब आपको ये दिख जाएगा। तो नीरज 10B प्लस 1 क्या है? 10 का मल्टीपल प्लस 1 तुमने क्या लिखा है? 10 का मल्टीपल प्लस 1 ही तो लिखा है, ठीक है। सुबह सुबह क्लास में चाय भूल गए आप लोग, चाय और नमक तो लेकर आना है साथ में, थोड़ा नमक थोड़ा चाय भूल जाते हो ना आप लोग, डेली बोलना पड़ता है कि चीजें। हाँ देखो, तो नाउ अब ये आपको दिखेगा कि इट्स अ मल्टीपल ऑफ 100। अगर ये मल्टीपल ऑफ 100 है तो ये भी, ये ऑलरेडी 100 का मल्टीपल है, राइट? ये ऑलरेडी 100 का मल्टीपल है। सो नाउ फॉर दिस एक्चुअली, सो बी दिस ऑल्सो शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 100, करेक्ट? ऑलरेडी इज राइट, समझ रहे लॉजिक देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 100, मल्टीपल ऑफ 100, मल्टीपल ऑफ 100, राइट? तो ये टर्म फिलहाल, दिस टर्म इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100. फॉर दिस टू बी मल्टीपल ऑफ 100 यू कैन जस्ट पुट b इज इक्वल टू 10c, है ना? तो बेसिकली क्या होगा, b इक्वल टू 10c हो जाएगा, राइट? क्योंकि b क्या होगा, अगर आप b को 10c पुट करोगे, दिस नंबर विल बिकम अ मल्टीपल ऑफ 100. गेटिंग इट राइट ऑल ऑफ यू, है ना? अब मेरा यहाँ टर्म क्या बन जाएगा, इफ आई पुट b 1c बन जाएगा मेरा 100a minus 1 into 100c plus 1 is equal to 6t499, ठीक है। तो अब देखो बात एक्चुअली वहीं पे आ गया, राइट? तो हमने बात घूम के वहीं पे आ गया हमारा, ओके, दैट ये जो वैल्यू है जो हमने लिखा था ये इक्वेशन, तो नाउ आई एम श्योर दैट, समझ आ गया? हमने बात सुनना, मैंने यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनना। नाउ आई एम श्योर दैट कि ये अगर ये एंडिंग इन 99 है, राइट, तो ये हमेशा क्या होगा, 101 में ही चेंज कर रहा होगा, ठीक है ना? तो ये एक्चुअली में ट्रू बात है, राइट? बट नॉट एक्चुअली 101 लिखूं मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, जब समझना यहाँ पे, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इट शुड बी एंडिंग इन, इट शुड बी अ 3 डिजिट नंबर, राइट? मतलब जैसे जो अभी एक बंदा किसी ने कोई बोल रहा था कि सर इज इट नॉट पॉसिबल कि वहां 21 हो, 31 हो, 41 हो, तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, राइट? तो उसी चीज को मैं मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये 99 का मल्टीपल है तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 99, ठीक है, हैज टू ऑलवेज एंड विथ 01 एंड में, एंड इट शुड बी अ 2 और 3 डिजिट नंबर, ठीक है? तो लास्ट में 01 होना ही पड़ेगा, राइट? तो इफ अगर ये डाउट मन में नहीं था तो यू कुड हैव डायरेक्टली रिटन, आप इस स्टेप को डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ठीक है? मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ता कि दिस नंबर, एवरी नंबर नीड्स टू बी मल्टीपल ऑफ 100 हियर, राइट? आप इसको डायरेक्टली, अगर आपको पता है, इफ यू कैन सेंस इट, राइट, तो दिस माय, समझना गाइस, यहाँ पे माय फर्स्ट स्टेप कैन बी डायरेक्टली, मेरा हो सकता है कि 100a minus 1 will end in 99 and it should be actually ending in 01. तो यहां पे लास्ट पे पक्का 01 तो होगा ही होगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे 100c plus 1 is equal to 60,599, ठीक है? तो ये एक अच्छा फंडा है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, राइट? ओके, तो ये मैंने इसलिए इसको यहां पे लिखा है, ठीक है? सॉरी 499, ठीक है? शुड बी क्लियर टू एवरीवन नाउ, ठीक है? याद क्यों रखे, ये इतना समझाया याद रखने के लिए सृष्टि। अब यहां पे अब इसको सॉल्व करना है, राइट? तो ना मुझे पता है कि एक 99 का मल्टीपल होना चाहिए एंड अदर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ एंडिंग विद 01, राइट? तो एंडिंग विद 99 होगा, हमेशा होगा, पक्का लॉजिकल है, राइट? अब इसको आप चेक कर सकते हो कि आपको देखो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यू कैन जस्ट टेक इट हियर, राइट? हाँ, तो सॉल्व करो, 10,000 AC, इसको सॉल्व करो गाइस, हाँ, प्लस 100 इंटू a माइनस c इज इक्वल टू 60,500, ठीक है? जस्ट मल्टीप्लाई आपका बन जाएगा 100 AC प्लस 100 इंटू
सॉरी प्लस ए माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 605, राइट। चलो हमने इसको काफी छोटा कर लिया, ठीक है। सो हार्डली गॉट दिस लॉजिक, राइट, इट्स हार्डली अ टू स्टेप क्वेश्चन एक्चुअली में, ठीक है, बट लेट लॉजिक शुड बी क्लियर कि हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स 100 AC इंटू ए प्लस ए माइनस सी सेटिस्फाइड, राइट। अब चेक करें सेटिस्फाई क्या करेगा इसको, तो यू कैन सी हियर थोड़ा हिडन ट्रायल है। अब यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो ना कि आपको 605 चाहिए, तो आपको अगर 605 चाहिए तो ट्राई टू रीच क्लोजर टू 600। हाँ, अब ये 600 कब होगा, और ये होना चाहिए 5, राइट। तो ये होगा ए इंटू सी शुड बी इक्वल टू 6। इफ ए इंटू सी इज इक्वल टू 6, तो ए माइनस सी शुड बी इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो ये तभी आएगा व्हेन ए इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आप A6 और C1 यहां पुट करोगे, राइट, तो आपको फैक्टर मिल गए। once you try to put this A6 here and once you try to put C1 here, so you got the factor as what, 599 into 101, ठीक है। दैट्स द कंप्लीट थॉट प्रोसेस अगर कभी ऐसा क्वेश्चंस मिलते हैं तो। ठीक है, ओके फाइन, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नाउ। Look at this. इस स्पेशल क्लास 1 आवर होता है मेहुल, आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बाद अगर जल्दी खत्म कर लेंगे तो। तो एलआईडी भी होगा, कल परसों भी है, कल परसों है ना एलआईडी है, कल परसों। टुमारो 8 to 11 सैटरडे, टुमारो वे अबाउट क्लास हम 8 to 11, लगातार 3 घंटे क्लास है एलआईडी स्पेशल 5। क्यों नवीन? एलआईडी पार्ट 5 है ना, एलआईडी पार्ट 5 16 सितंबर सॉरी 16 सितंबर से। चलो पोलिंग गाइस, 2 मिनट हो गए। अच्छा अभी ब्रो स्टिल 15 सेकंड्स टू गो। नहीं सबके लिए स्पेशल क्लास है सचिन। अभी अभी मैसेज में अन अकेडमी, हाँ विल आई विल टॉक यू, राइट, आई टॉक टू यू अन अकेडमी, मैसेज कर अन अकेडमी पे। नहीं वो हमारा एलआईडी पार्ट 5 हमारा फुल कोर्स है ना, 400 सेट्स का वो है। हाँ ये कल की सारी स्पेशल क्लासेस तो कल की सारी। चलो पोलिंग गाइस हो गया, ठीक है। या टुमारो 3 आवर्स, संडे 3 आवर्स, ऑल फ्री है सबके लिए, वो स्पेशल क्लास है वो।
ओके, क्या बात है मैम, तुम कहाँ टॉप पे पहुंच गए चुपके चुपके। बिरयानी, मैं बिरयानी बिरयानी पार्टी दो यार, तुम ऐसे कैसे हो गए। मयंक, आयुष, स्वास्तिक, अंकित, अदिति, श्रुति और चलो गुड, ऑल 5/6। मुझे लगता ही था मयंक, ऐसा मुझे लगता ही था, अब लग रहा है ऐसा। देखो, तो ये आप लोग है 20 राइट, देन यू सी 25, देन 28, 31 एंड 34। ठीक है, ठीक है मैम, आ जाओ मंडे को, आ जाओ मंडे, आ जाओ लंच के टाइम पे, लंच के टाइम पे आ जाओ, मिलते हैं। ठीक है, 37, 40, 43 एंड 46 राइट। देखो सुनाओ, अब यहाँ पे देखोगे राइट, मैं अगर मैं मंडे छुट्टी पे नहीं हूँ तो ठीक है, मैं बता दूं मंडे में मुझे कंफर्म करना मैं मंडे हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट, जस्ट सी हियर गाइस, ओके, तो ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे ना, जस्ट ऑब्जर्व फ्यू नंबर्स हियर गाइस। देखो, तो मुझे क्या पता है, फॉर डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, हाँ, तो मुझे यहां ज्यादा कुछ करना नहीं है राइट। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सपोज पी, आई नो दैट एनी ऑड नंबर्स, है ना, ये फंडा होता है डिफरेंस फॉर परफेक्ट स्क्वायर का, ऑल दी ऑड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, और नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, व्हाट इज नंबर ऑफ वेज एक्चुअली, हाँ, ऑफ राइटिंग ऑड इनटू ऑड, हम कितने वेज इसको ऑड इनटू ऑड में लिख पाते हैं राइट। ऑल द इवन नंबर्स, तो अब इवन नंबर दो वैरायटी होते हैं राइट, सो इवन नंबर ऑफ द फॉर्म 4k। ठीक है, तो वी कैन राइट नंबर ऑफ वेज ऑफ बीइंग इवन इनटू इवन, मैं दो तीन फंडा बताया था यहाँ पे ना, डिवाइड बाय 4 एंड ऑल, तो अलग अलग चीजें हैं राइट। तो बेसिकली all the numbers of the form even numbers of the form 4k plus 2, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। सबको याद होना चाहिए, तो पक्का याद है सबको। तो बताओ पहले वाले क्या होगा, पहले वाले क्या होगा, नंबर ऑफ वेज कितना है पहले वाले का, नंबर ऑफ वेज होगा कितना है, क्विकली क्विकली, कितना, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 into 4। तो कैसे ही ऐसे ही याद है बस, कुछ भी जाके क्लास में रिवाइज करो। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, n/4, n/4 मींस नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 into 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, सौरभ क्लास ही नहीं करते हो, सब पढ़ाया है मैंने अलजेब्रा भी, जब हम अलजेब्रा कोर्स चल रहा है। ठीक है, और 4k+2, तो देखो गाइस यहाँ पे बता देता हूं कि एनी 4k+2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ 0। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज यू टेक लाइक एक नंबर है 10, 10 इज द फॉर्म 4k+2, मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर इज 2, यही होता है राइट, है ना। सो इसको 4k+2 फॉर्म बोलते हैं राइट। सो आई वांट टू राइट इट एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, तो लिखते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 10। What's going to solve it here guys, a minus b into a plus b equal to 10 राइट। तो अब इसको आप सॉल्व करते हो a और b के लिए, बट 10 इज क्या है ना, 10 इज अ 4k+2 फॉर्म नंबर। दिस 4k+2 फॉर्म नंबर, if you try to write it all, it can only written as even into odd। ठीक है, it can neither be odd into odd, it can neither be or nor be even into even, राइट। तो इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका फर्क ये पड़ता है कि इफ यू राइट दिस एज 2 into 5, है ना, अगर आप इसको लिखते हो यहां पे 2 into 5, ठीक है, और यहां पे बेसिकली क्या होता है इस केस में कि ये 2 into 5 है राइट। तो अब जो आप यहां वैल्यू लोगे ना, जैसे मान लो क्या होता है, नाउ a minus b equal to 2 एंड a plus b equal to 5 राइट, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये मिलेगा 2a equal to 7, तो a is not an integer राइट। सो परफेक्ट स्क्वायर मींस ऑलवेज इंटीजर राइट, a is never an integer। ठीक है, तो इन दैट केस बेसिकली नहीं, इट इज प्लस कोर्स में, ठीक है। सो इन दैट केस बेसिकली ये जो है आपका एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4k+2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। हाँ प्रज्ञा, ओके। तो
बेसिकली मुझे क्या देखना है यहाँ पे, तो सी गाइस, तो ये 1 क्या है, ऑड नंबर, ऑब्जर्व करना गाइस यहाँ, ठीक है, 1 ऑड नंबर, 4 इज व्हाट, इवन नंबर, ठीक है, 7 इज ऑड नंबर, 10 क्या है, 4k+2 फॉर्म है, ठीक है। क्या हमें सभी ट्यूटर्स की वीडियो सभी ना क्यों देखोगे, काफी है यार, अरे जिसका देखना है देखो, बट मेरा हो गया तो काफी है, मैंने सारे कुछ सारे फंडा कवर्ड है, सबका देखना थोड़ी टाइम हो, सबका बैठ के वीडियो देखते रहोगे, ये टाइम है, और टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। किसी का भी एक का देख लो, स्पेशली मैंने अपने में, मेरा अपना, मुझे अपने, आई कांट टेक एनी अदर गारंटी राइट, बट मैंने अपने में पूरा कवर करके रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 13 है राइट, अब भरत सर कराए होंगे कभी किसी और चैप्टर में, नंबर्स पे चेक कर लेना, किसी और में चेक कर लेना, भरत सर किसी और चैप्टर में कराए होंगे नंबर, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व करो, ठीक है गाइस, ये 13 क्या, 13 ऑड नंबर है, ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है ऑफ द फॉर्म 4k, ये ऑड नंबर है, और ये क्या है, 4k+2। तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होगा, आपको ये क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि in every 4 numbers there is one number which is not of the form 4k+2, है ना, हर 4 नंबर में, सॉरी, in every 4 numbers there is one number in which is in the form of what, 4k+2, ये 4k+2 के फॉर्म में है, ठीक है। अगेन इन दिस 4 नंबर्स, अगेन एक नंबर है जो 4k+2 के फॉर्म में है, राइट। तो हर 4 नंबर में एक नंबर, ठीक है, तो हर 4 नंबर में एक नंबर, ठीक है, हर 4 नंबर में एक नंबर, तो बेसिकली क्या होगा, टोटल 300 नंबर्स है, राइट। सो आउट ऑफ एवरी 4 नंबर्स 3 नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, सो आउट ऑफ 300 नंबर्स कितने हो जाएंगे, 3/4 of 300, that is 225 numbers can be expressed as difference of two perfect squares. 75 numbers cannot be expressed, 225 numbers can be expressed, right? ठीक है, that's the complete fund of this question. Clear to everyone? हाँ बोलो श्रीजा। नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 into, अरे इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। किशन वॉच क्लासेस देखो, ये कोई अब वो नहीं करो, एक ही चीज बार बार रिपीट करते रहोगे, क्लास देखो बैठ के, सब पढ़ाया हुआ अलजेब्रा में, अभी पुराने कोर्स में पढ़ाया है, नए कोर्स में पढ़ाया है, पिक्स थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ये वाला डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, कितने सब कैट में क्वेश्चन आ चुके हैं, लुक एट द क्लासेस, सब क्लासेस देखो। तो ये देखो 3 नंबर से यहाँ पे, राइट, हाँ फटाफट, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 1 घंटे में क्लोज, मुझे ऑफिस भी जाना है, ठीक है, चलो कल करेंगे, विल कंटिन्यू टुमारो, राइट। सुशांत तुम बस छोड़ दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ाई पे, ठीक है, एक मिनट, ओके, विल मीट टुमारो गाइस, ठीक है, फॉर दिस आगे का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सो टुमारो वी हैव क्लासेस, राइट, ठीक है, तो कल हमारा क्लासेस है यहाँ पे, नहीं अगर पुराना कोर्स किया तो नया कोर्स जरूरी नहीं है, ठीक है, स्पेशल क्लास 2 आवर्स नहीं होता यार, स्पेशल क्लास एक ही घंटा, ठीक है। तो टुमारो वी हैव, कल का शेड्यूल है 8 to 11 AM, ठीक है, 8 to 11 AM, ठीक है, ऑल स्पेशल क्लासेस, एक LRDI का है, एक इसका पार्ट 2 है, आज का कोस्ट गार्ड का पार्ट 2, और एक है प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस, हाँ, तो सारा कल करेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप में, नवीन ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ देखो, तो बेसिकली हम लोग ये क्या कर रहे हैं, सो इन LRDI वी आर कवर्ड, हम प्लस में वी हैव कवर्ड टोटल 400 सेट्स हियर, ठीक है, तो हमने ये 400 सेट्स कवर किया है, राइट, कर रहे हैं हम लोग अभी। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड अराउंड 282 सेट्स हमने अभी तक किया है, ठीक है। सो आवर फंडा इज दैट आउट ऑफ 400 सेट्स हम लोग 80% सेट्स करते हैं, प्लस हमने कर रहे हैं लोग प्लस कोर्स में, ठीक है, एंड अराउंड 20% सेट्स
वी आर डूइंग एट स्पेशल क्लासेस। ठीक है, बाय बाय गाइस। और ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली सो इन जिनको भी इशू आ रहा है प्लस एलआरडी वगैरह मॉक्स में, इफ यू आर गेटिंग लेस स्कोर्स एक्चुअली, तो आप आराम से इसको मूव कर सकते हो। जैसे अरेंजमेंट हुआ, क्वांट बेस्ड एलआर सेट्स, मैक्सा मिनिमा, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन वेन डायग्राम, राइट, सेट्स 5-6 पैरामीटर, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, गेम्स, टूर्नामेंट, मैजिक बॉक्स, क्रिप्ट अरिथमेटिक, रूट्स नेटवर्क्स, क्यूब क्यूबॉइड, हाँ, ये सारी कुछ कवर्ड है। एंड एटलीस्ट 15 to 20 सेट्स ऑन ईच वेराइटी आर कवर्ड। ठीक है, तो अगर किसी को आप लोगों को मॉक्स में स्कोर कम आ रहा है तो ऑल दिस सेशंस आर अरेंज्ड मेरे प्लस पे सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, लाइक LRDI पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, तो ये 4 पार्ट से सारा अरेंज है मेरे प्लस के कोर्सेज में। ठीक है, और आई कैन इजिली कवर एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 5 सेट्स पर डे करोगे तो इन नेक्स्ट 2 months यू कैन कवर ऑल दी वेराइटीज। ठीक है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, एंड देन यू कैन इफ यू विश टू एनरोल दिस कोर्सेज, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर गोस फॉर क्वांट ऑल्सो। तो क्वांट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन क्वांट वी हैव फिनिश्ड अलजेब्रा, वन टाइम वी हैव फिनिश्ड, ऑल रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, ज्योमेट्री फिनिश्ड, all recordings are available, arithmetic finished, all recordings are available, and both we have done 350 questions हमने यहाँ पे किया है, we have done more than 300 questions here, so already there's a huge question bank of 1000+ questions covering each and every variety। जितना आप शॉर्टकट सोच सकते हो, जितना आप थ्योरम सोच सकते हो, जितना आप फंडा सोच सकते हो, सारा कुछ कवर्ड है। ठीक है, इससे बाहर किसी एग्जाम में नहीं आना। ठीक है, कैट जैट किसी में भी। ठीक है, ऑल ये सारा एक बैच कवर्ड हो गया है, ऑल रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, you can watch at your own pace, अपने पेस पे देख सकते हो रिकॉर्डिंग। सो इन 2 months you can फिनिश कर लोगे मॉक के साइड बाय साइड, यू कैन इजिली फिनिश ऑल दिस डेटा एक्चुअली। ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई बुक नहीं चाहिए, यू रिक्वायर नो बुक्स। ठीक है, ऑल सारे मेरे क्लासेस में कवर्ड है। ठीक है, जस्ट फिनिश ऑल दिस बिकॉज दिस एक्चुअली इंक्लूड्स अ 1000+ क्वेश्चंस का ये सेट है। ठीक है, और प्लस हम लोग अभी खुद ही हम लोग अभी स्पेशल क्लास में हम लोग 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। हम लोग फिर प्लस क्लास में एक और कोर्स लॉन्च करेंगे 300 न्यू क्वांट क्वेश्चंस का, दैट विल प्योरली एडवांस लेवल। ठीक है, तो इतने सारे हम लोग क्लास में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस केस में आप आराम से इस तरीके से मूव कर सकते हो, राइट। और ये आपका ये दिस इज रेफरल यूजिंग, ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप मूव कर सकते हो। एंड इफ यू विश टू एनरोल इट कैन एनरोल। ठीक है, मुझे मैसेज करना, मैं ऐड कर दूंगा अभी। हाँ, ऑलमोस्ट डेली चलेगा वो क्लास, चलेगा डेली 200 क्वेश्चन वाला, ऑलमोस्ट डेली चलेगा। डेली तो नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, बट या टिल नेक्स्ट संडे आई टेकिंग 4-5 क्लासेस। ठीक है, हाँ, अब तो ऑलमोस्ट 200-2000 लोग हो गए ग्रुप पे। ठीक है, तो ठीक है, सी यू गाइस टुमारो 8 AM। ठीक है, मिलते हैं। फॉर हम लोग का रात में आज क्लास है 10:30, तो जो लोग प्लस में हैं तो हम लोग 10:30 स्टार्ट कर रहे हैं टुडे, सॉरी 10 PM हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टुडे पॉलिनोमियल्स एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो स्टार्टिंग टुडे एट 10 PM जो लोग प्लस में हैं, जो लोग स्पेशल क्लासेस में हैं, ठीक है, हम लोग विल मीट सैटरडे 8 AM, सैटरडे 8 AM to 11 AM। ठीक है, ऑल प्रैक्टिस सेशंस, LRDI एंड क्वांट प्रैक्टिस सेशंस। कल क्लास टाइम 10, 8 to 10, 8 to 11, 8 to 11, 8 to 12, 8 to 11, यस। हाँ, बिल्कुल करो आयुष, बिल्कुल करो। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है। ओके, चलो बाय बाय गाइस, मुझे ऑफिस जाना है। बाय बाय, सी यू इन द नाइट। वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सिद्धार्थ ग्रुप में डाल के टैग कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। ओके, ओके, प्रोफाइल में होती है सारी रिकॉर्डिंग, मेरे प्रोफाइल में होती है। ओके, दीक्षा जस्ट डाउनलोड PDF क्लास का, है ना, क्लास का PDF अवेलेबल, डाउनलोड कर लेना उसको। इस केस में नहीं हुआ सिद्धार्थ, इस केस में नहीं हुआ।
ये नहीं लिखा हुआ था कि आप उस नंबर को डिफरेंस ऑफ 2 पॉसिबल होना चाहिए, नहीं कि वो 2 नंबर प्रेजेंट होगा सेट में, ऐसा नहीं लिखा हुआ था सिद्धार्थ। हाँ राघव चेक करूंगा मैं, ओके चलो बाय बाय, सी यू इन द नाइट। Unacademy. Let's crack it.